दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। उसमें शिरकत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सी तस्वीरें आईआईटी कानपुर से, जिसका 54वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर शिरकत कर रहे हैं विशेष अतिथि के रूप में। साथ में हम देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा हस्ते स्फाटिकमालिकं विदधति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा नाद ब्रह्मा। Please be seated. This convocation of the Indian Institute of Technology, Kanpur, has been called to confer degrees upon candidates who have been certified to be worthy of receiving the same. I hereby declare the 54th convocation open. I request the director to please present a memento on behalf of the Institute to the Honorable Prime Minister. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, चेयरपर्सन बीओजी आदरणीय डॉक्टर के राधाकृष्णन, बीओजी के अन्य सम्मानित सदस्य, एकेडमिक सीनेट के सदस्य, अन्य सभी गणमान्य अतिथि, प्रिय छात्र, देवियों और सज्जनों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी छात्रों और उनके गौरवान्वित परिवारों, मानद उपाधि ग्रहण करने वाले विशिष्ट महानुभावों और अन्य सभी पुरस्कारों और पदक विजेताओं को मेरी हार्दिक बधाई। Sir, we are indeed privileged and honored to have you amongst us on this momentous occasion. Despite the shadow of COVID-19 pandemic, the academic session has been a truly rewarding one, and it is a privilege for me to recount some of our academic and R&D activities pertaining to this year. It is a moment of pride for me to inform that
1723 degrees are being awarded today, out of which 194 are PhDs. For the first time, the degrees will also be given through an in-house blockchain-driven technology developed at our institute under the National Blockchain Project. Sir, this year the institute has established 2 new departments. Department of Sustainable Energy Engineering, with the aim of becoming a vital contributor to nation's growing clean and renewable energy sector, and Department of Cognitive Science as a foray into an interdisciplinary study of mind. The institute has also launched e-masters program in various disciplines for upskilling industry professionals. With a vision to transform into a large multidisciplinary university in line with NEP 2020, sir, the institute is in the process of establishing School of Medical Research and Technology, which will serve as the hub for nurturing startups in medtech domains for the indigenous development of medical technology. The pioneering R&D at IIT Kanpur is an example of institute playing a lead role in furthering the national development agenda. During this year, 191 sponsored projects and 128 consultancy projects were sanctioned, and we received a total funding close to 250 crores for sponsored and consultancy projects. 61 IPRs were also filed by the institute. The cutting-edge research in the area of environment and sustainability, clean energy renewable, flexible electronics, nanotechnology, blockchain technology, defense and aerospace, 5G and beyond communication technology being undertaken in the institute shapes the country's aspiration to become self-reliant. सर, मुझे सूचित करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आईआईटी कानपुर ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बड़ी संख्या में प्रोजेक्ट में भागीदारी की है। हाल ही में एक संयुक्त पहल के रूप में एआई तथा इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। IIT Kanpur has a strong ecosystem of innovation and incubation, and I am proud to mention that the incubator has achieved a historic milestone of crossing 100+ startups in its portfolio. One of our incubated companies, Aquafront Infrastructure, recently deployed a patented technology to construct the world's first floating CNG filling station for eco-friendly boat on the Khirkiya Ghat in Varanasi. Sir, IIT Kanpur's core strength lies in its world-class faculty who continue to push frontiers of knowledge and create new ones. I am proud to share that this year, many of our faculty have been selected for prestigious recognition such as Shanti Swarup Bhatnagar Prize, Swarna Jayanti Fellowship, Fellowship of Indian Academies, and so on. In the past 1 year, 28 new faculty members have joined the institute. Our alumni have been contributing immensely to the institute. This year, we have already received 89 crore rupees and expect that it will touch 160 crore rupees by the end of the financial year through alumni donations and corporate TSRs. Dear students, today after graduating, you will be leaving the institution's secure surroundings to seek your place in the bigger society. Whatever be your chosen profession, remember that excellence, integrity, and compassion should be your guiding principle. I urge all of you to be deeply conscious of the fact that you belong to that privileged caste which got an opportunity to study in one of the best colleges in the country. Now, it is your time to give back to society and the nation. As Swami Vivekananda has said, on our work depends the coming of the India of the future. With best wishes for a new beginning, Jai Hind. Sir, it is my pleasure to invite the Honorable Chief Minister Yogi Adityanath ji to deliver his address to the graduating students.
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 54वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी डॉक्टर के राधाकृष्णन, चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ गवर्नेंस आईआईटी कानपुर, डायरेक्टर आईआईटी कानपुर प्रोफेसर अभय कारिंदकर जी, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, अन्य गणमान्य अतिथिगण, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आईआईटी कानपुर के इस दीक्षांत समारोह में प्रदेश के इस औद्योगिक नगर कानपुर में मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं और आईआईटी कानपुर को 54वें दीक्षांत समारोह के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि गुणवत्तापरक तकनीकी शिक्षा प्रदान करने में हमारे देश के तकनीकी संस्थानों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और खास तौर पर प्रधानमंत्री जी ने जो विजन 21वीं सदी के लिए इस देश को दिया है, इसमें उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की संज्ञा दी है। स्वाभाविक रूप से 21वीं सदी में हम भारत की और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में हम सब की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस दिशा से इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को आत्मनिर्भर भारत का एक मंत्र दिया है। आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए इस देश ने 2020 में अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू की है, जो एक नए भारत की एक नई तस्वीर हम सब के सामने प्रस्तुत कर रही है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश इस दिशा से एक नई पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि प्रदेश में आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, आईआईएम लखनऊ जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं वर्तमान में मौजूद हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश के संस्थाओं को, प्रदेश के युवाओं को एक नई मार्गदर्शन प्रदान करने में सदैव सहायता मिलती है। और आईआईटी कानपुर ने तो राज्य सरकार के साथ पारस्परिक सहयोग के अनेक उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं, चाहे वह प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टार्टअप की नीति को क्रियान्वित करने की दिशा से स्थापित करने की कार्रवाई रही हो, या फिर प्रदेश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में प्रदेश के एक तकनीकी पार्टनर के रूप में सहयोगी प्रदान करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश ने सूचना प्रौद्योगिकी के साथ साथ गैर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अपनी एक नई स्टार्टअप नीति 2020 लागू की है। राज्य सरकार द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में देश का जो पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में स्थापित करने का निर्णय लिया था। यह केंद्र स्टार्टअप को बढ़ावा देते हुए 5 वर्षों में 250
स्टार्टअप को अपना सहयोग प्रदान करेगा। यह व्यवस्था रक्षा प्रौद्योगिकी तथा कृषि प्रौद्योगिकी में भी उत्कृष्टता के लिए स्थापित उन केंद्रों के अतिरिक्त है जिन्हें पूर्व में आईआईटी कानपुर में राज्य सरकार की साझेदारी से स्थापित किया है। आईआईटी कानपुर तथा एकेटीयू के द्वारा संयुक्त रूप से केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वित्त पोषण से एकेटीयू में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंच स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से एकेटीयू की फैकल्टी और वहां के विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण और शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। आईआईटी कानपुर के साथ वर्तमान में राज्य सरकार ने प्रदेश के अंदर कोरोना जैसी महामारी की चुनौतियों से सफलतापूर्वक सामना करने के लिए स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के नाम पर एक नए सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान की स्थापना के लिए अपना सैद्धांतिक सहमति दी है, जिसमें आईआईटी कानपुर और राज्य सरकार की संस्थाएं केजीएमयू, एकेटीयू आदि संस्थाएं मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगी। यह न केवल स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्रदेश की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में उपयोगी सिद्ध होने के साथ ही राज्य में चिकित्सा प्रौद्योगिकी के इकोसिस्टम के बढ़ावा देने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। उत्तर प्रदेश ने कोविड प्रबंधन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश के अंदर एक मॉडल स्थापित करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के इस मॉडल का अध्ययन आईआईटी कानपुर ने उत्तर प्रदेश नीति, युक्ति और परिणाम के एक विशिष्ट शोध के माध्यम से भी किया है। आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश ने तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की फैकल्टी को प्रशिक्षण देने, छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास और उन्हें रोजगारोन्मुखी बनाने का मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आईआईटी कानपुर के हम सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज प्रदेश और देश जिन चुनौतियों से जूझ रहा है, इन बदली हुई परिस्थितियों में व्यावसायिक संस्थानों के पाठ्यक्रम को अपडेट करने, कई ऐसे ट्रेड जिनकी वर्तमान में उपयोगिता नहीं रह गई है, उन्हें उनके स्थान पर आज की नई आवश्यकता के अनुरूप हम ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे सेक्टर में भी आईआईटी कानपुर के सहयोग की अपेक्षा राज्य सरकार करती है और राज्य सरकार ने इस दिशा में प्रदेश के तकनीकी संस्थानों में एक टास्क फोर्स का भी गठन किया है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से प्रदेश के इस औद्योगिक नगर कानपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आईआईटी कानपुर को 54वें दीक्षांत समारोह में हृदय से बधाई देता हूं। यहाँ के जिन स्टूडेंट्स को आज उनकी डिग्री अवार्ड की जा रही है, हमें विश्वास है कि वह प्रधानमंत्री जी के इस नए भारत के विजन को देश और दुनिया के सामने अपने ज्ञान से, अपनी दक्षता से प्रस्तुत करने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। Let the candidates for all the degrees be presented. Sir, I present the candidates who, having satisfied the requirements for the conferral of degrees and diploma in the respective disciplines, are considered worthy of receiving the same. I recommend that they be admitted to the said degree
and diploma. Sir, I present the candidates who, having satisfied the requirements for conferral of the degrees in respective disciplines, are considered worthy of receiving the same. I recommend that they be admitted to the said degree. Recipients of all the degrees, please rise. By virtue of the authority vested in me as the chairperson of the Senate of Indian Institute of Technology, Kanpur, I do hereby admit each of these candidates to the respective degrees and charge them to prove worthy of the same throughout their life. संस्मरन्तु भवन्तः भवदीयमिदं ज्ञानविज्ञं राष्ट्रस्य पवित्रमो निधि तस्माद् अस्योपयोगः स्वदेशस्य स्वशिक्षण संस्थानस्य च गौरवानुरूपं समग्र विद्यातण्यं कस्यामपि दशायां भवति स्वकीया व्यावसायिक मर्यादा चारित्रिक महत्ता च सयत्नं संरक्षणीय मनसा वाचा कर्मणा च सर्वथा लोक कल्याणाय प्रयत्न्यम् अनुशासन प्रिय सदा भाव्यम स्मर्यताज्ञम श्रुते वचनम यानी अनवध्यानी कर्माणि तानि सेवित्व्यावि नो इतराणि. Recipients of all the degrees, please be seated. I now request the Honorable Prime Minister to remotely launch the blockchain-based digital degree transmission. Let the recipients of the degree of Doctor of Science, honoris causa, and medals and prizes be presented. May I request the Honorable Prime Minister to please present the awards. I request the Honorable Prime Minister to please award the degree of Doctor of Science honoris causa to Professor Rohini Madhusudan Godbole. I request the Honorable Prime Minister to please award the degree of Doctor of Science honoris causa to Shri Senapati Gopal Krishnan ji.
I request the Honorable Prime Minister to please award the degree of Doctor of Science honoris causa to Pandit Ajay Chakraborty. Sir, I present Abhyuday Pandey, who has been declared winner of the President's Gold Medal for the year 2021 for the best academic performance among graduating students of all disciplines in all four-year undergraduate program. Sir, I present Yash Maheshwari, who has been declared winner of the Ratan Swarup Memorial Prize for the year 2021 for the best all-rounder among the students in all four-year, five-year undergraduate program. It is my pleasure to invite the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to deliver the convocation address. कॉन्वोकेशन में इतना गंभीर रहना जरूरी होता है क्या? काफी सूचनाएं दी गई ऐसा लग रहा है। आप सबको नमस्कार। कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, डॉक्टर के राधाकृष्णन जी, प्रोफेसर अभय करंदीकर जी, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर्स, सभी स्टूडेंट्स, अन्य महानुभाव और इस ऐतिहासिक संस्थान से डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, सम्मानित हो रहे हैं अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव। आज कानपुर के लिए दोहरी खुशी का दिन है। आज एक तरफ कानपुर को मेट्रो जैसी सुविधा मिल रही है, वहीं दूसरी ओर आईआईटी कानपुर से टेक्नोलॉजी की दुनिया को आप जैसे अनमोल उपहार भी मिल रहे हैं। मैं अपने हर युवा साथी को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। आज जिन स्टूडेंट्स को सम्मान मिला है, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। आप आज जहां पहुंचे हैं,
आपने जो योग्यता हासिल की है उसके पीछे आपके माता पिता, आपके परिवार के लोग, आपके टीचर्स, आपके प्रोफेसर्स, ऐसे अनगिनत लोग होंगे। उन सब की बहुत मेहनत रही है, कुछ न कुछ योगदान रहा है। मैं आज आपके जीवन को घड़ने में जिन जिन का योगदान रहा है, मैं उन सभी का भी, विशेष करके आपके माता पिता का हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपने जब आईआईटी कानपुर में प्रवेश लिया था और अब जब आप यहां से निकल रहे हैं, तब और अब में आप अपने में बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे। यहां आने से पहले एक फियर ऑफ अननोन होगा, एक क्वेरी ऑफ अननोन होगी। पहले आपकी नॉलेज, आपकी क्वेरीज का दायरा, आपका स्कूल, कॉलेज, आपके मित्र, आपका परिवार, आपके अपनों के बीच सिमटा हुआ था। आईआईटी कानपुर ने आपको उससे बाहर निकालकर एक बहुत बड़ा कैनवास दिया है। अब फियर ऑफ अननोन नहीं है, अब आप पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने का हौसला लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब क्वेरी ऑफ अननोन नहीं है, अब क्वेस्ट फॉर द बेस्ट पूरी दुनिया पर छा जाने का सपना है। और जितनी लर्निंग आपकी क्लासरूम में हुई या जितना आपको अपनी क्लास में सीखने को मिला, उतना ही आपने अपने क्लासरूम के बाहर अपने साथियों के बीच एक्सपीरियंस किया है। क्लासरूम में आपके विचारों का, आपके आइडियाज का विस्तार हुआ। क्लासरूम के बाहर आपके व्यक्तित्व का विस्तार हुआ, आपकी पर्सनालिटी विकसित हुई है। आपने आईआईटी कानपुर में जो अर्जित किया, जो विचार समृद्ध हुए, वो एक ऐसी मजबूत फाउंडेशन है, फोर्स है, जिसकी शक्ति से आप जहां भी जाएंगे वहां कुछ नया करेंगे, अनोखा करेंगे, कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे। आपकी आज की ट्रेनिंग, आपकी स्किल, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान निश्चित तौर पर आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मजबूती से जगह बनाने में बहुत मदद करेगा। लेकिन यहां आपका जो व्यक्तित्व विकसित हुआ है, वो आपको ऐसी ताकत देगा जिससे आप सोसाइटी एज अ होल उसका भला करेंगे, अपने समाज, अपने देश को एक नया सामर्थ्य देंगे। साथियों, आपने यहां आईआईटी की भव्य लीगेसी के हिस्टोरिकल पीरियड को जिया है। आपने विविधताओं से भरे भारत के वैभव के साथ वर्तमान को जिया है। भव्य लीगेसी
और वाइब्रेंट प्रेजेंट, इन दो पिलर्स पर, इन दो पटरियों पर आज आप अपने उज्जवल भविष्य की यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये यात्रा शुभ हो, देश के लिए सफलताओं से भरी हो। आज जब आपके बीच हूं तो मैं यही कहूंगा, मेरी आप सबसे यही कामना रहेगी। साथियों, इस साल भारत ने अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश किया है। हम सभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आपने जहेज शहर में अपनी डिग्री पाई है। उस कानपुर का अपना शानदार इतिहास रहा है। कानपुर भारत के उन कुछ चुनिंदा शहरों में से हैं जो इतना डाइवर्स है। सत्ती चौरा घाट से लेकर मदारी पासी तक, नाना साहब से लेकर बटुकेश्वर दत्त तक, जब हम इस शहर की सैर करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम स्वतंत्र संग्राम के बलिदानों के गौरव की, उस गौरवशाली अतीत की सैर कर रहे हैं। इन स्मृतियों के बीच आप सभी पर देश को अगले 25 वर्षों तक दिशा देने, देश को गति देने का दायित्व है। आप कल्पना करिए, जब 1930 में 1930 में दांडी यात्रा शुरू हुई थी, तब उस यात्रा ने उस टाइम पीरियड को, पूरे देश को कितना आंदोलित कर दिया था। उस समय देश जितना चार्ज था, उसने आजादी के लिए भारत के जन जन में एक अभूतपूर्व विश्वास पैदा कर दिया था। हर भारतवासी के मन में विजय का विश्वास भर दिया था। 1930 के उस दौर में जो 20-25 साल के नौजवान थे, 1947 तक उनकी यात्रा और 1947 में आजादी की सिद्धि उनके जीवन का गोल्डन फेज थी। आज आप भी एक तरह से उस जैसी ही गोल्डन एरिया में कदम रख रहे हैं। ये गोल्डन एरा है आपके लिए। जैसे राष्ट्र के जीवन का अमृत काल है, वैसे ही ये आपके जीवन का भी अमृत काल है। अमृत महोत्सव की इस घड़ी में जब आप आईआईटी की लीगेसी लेकर निकल रहे हैं, तो उन सपनों को भी लेकर निकले कि 2047 का भारत कैसा होगा। आने वाले 25 सालों में भारत की विकास यात्रा की बागडोर आपको ही संभालनी है। जब आप अपने जीवन के 50 साल पूरे कर रहे होंगे, उस समय का भारत कैसा होगा, उसके लिए आपको अभी से ही काम करना होगा। और मुझे पता है, कानपुर आईआईटी ने, यहां के माहौल ने आपको वो ताकत दी है कि अब आपको अपने सपने पूरे करने से कोई रोक नहीं सकता। ये दौर, ये 21वीं सदी पूरी तरह
टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इस दशक में भी टेक्नोलॉजी अलग अलग क्षेत्रों में अपना दबदबा और बढ़ाने वाली है। बिना टेक्नोलॉजी के जीवन अब एक तरह से अधूरा ही होगा। ये जीवन और टेक्नोलॉजी की स्पर्धा का युग है और मुझे विश्वास है कि इसमें आप जरूर आगे निकलेंगे। आपने अपनी जवानी के इतने महत्वपूर्ण वर्ष टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट बनने में लगाए हैं। आपके लिए इससे बड़ा अवसर और क्या होगा। आपके पास तो भारत के साथ ही पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में योगदान करने का बहुत बड़ा अवसर है। साथियों, हमारी आईआईटीज तो हमेशा टैलेंट और टेक्नोलॉजी की इंक्यूबेशन सेंटर रही है और आईआईटी कानपुर की तो अपनी एक अलग ही रेपुटेशन रही है। आपने अपनी खुद की कंपनी एक्वाफ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए बनारस के खिड़किया घाट पर दुनिया का जो पहला फ्लोटिंग सीएनजी फिलिंग स्टेशन विकसित किया है, वो बेहतरीन है। इसी तरह आपने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी विकसित की है। दुनिया की पहली पोर्टेबल सॉइल टेस्टिंग किट बनाई है। 5G टेक्नोलॉजी में तो आईआईटी कानपुर का काम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का हिस्सा बन चुका है। ये संस्थान ऐसी अनेक सफलताओं के लिए बधाई का पात्र है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारियां भी कई गुना बढ़ गई हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, एनर्जी एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस में, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देश के सामने बहुत बड़ा स्कोप है। हेल्थ जैसे सेक्टर भी आज टेक्नोलॉजी ड्रिवन होते जा रहे हैं। हम एक डिजिटल डायग्नोसिस के एरा में है, रोबोट असिस्टेड ट्रीटमेंट के एरा में पैर रख रहे हैं। हेल्थ डिवाइसेस अब घर की एसेंशियल बन गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट में चुनौतियों का सामना भी हम टेक्नोलॉजी के जरिए ही कर सकते हैं। आप कल्पना करिए, हम कितनी व्यापक संभावनाओं के गेट पर खड़े हैं। ये संभावनाएं आपके लिए हैं। इनमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये आपके लिए देश के प्रति केवल जिम्मेदारियां नहीं, बल्कि ये वो सपने हैं जिन्हें हमारी कितनी ही पीढ़ियों ने जिया है। लेकिन उन सपनों को साकार करने का, एक आधुनिक भारत बनाने का वो सौभाग्य आपको मिला है, आपकी पीढ़ी को मिला है। साथियों, आज आप 21वीं सदी के जिस कालखंड में हैं, वो बड़े लक्ष्य तय करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी शक्ति लगा देने का है। जो सोच और एटीट्यूड आज आपका है, वही एटीट्यूड देश का भी है। पहले अगर सोच काम चलाने की होती थी, तो आज सोच कुछ कर गुजरने की, काम करके नतीजे लाने की है। पहले अगर समस्याओं से लाने की है, पहले अगर समस्याओं से पीछा छुड़ाने की कोशिश होती थी, तो आज समस्याओं के समाधान के लिए संकल्प लिए जाते हैं। समाधान वो भी स्थायी, स्टेबल सॉल्यूशंस। आत्मनिर्भर भारत इसका बहुत बड़ा उदाहरण है।
साथियों, हम सभी ने देखा है कि परिवार में भी जब कोई 20-22 साल का हो जाता है तो घर के बड़े बुजुर्ग बार बार सुनाते हैं कि अब समय आ गया है, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। और मुझे पक्का विश्वास है, आप जब यहां से घर अब जाओगे जरा मिलने के लिए माता पिता को, तो पहला यही सुनोगे कि भाई अब मेरा काम पूरा हो गया, अब अपने पैरों पे खड़े हो जाना। हर माँ बाप यही कहने वाले हैं, और अगर देर कर दी तो बार बार सुनने को मिलेगा। घर के बड़े बुजुर्ग माता पिता ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप आत्मनिर्भर बने, आप अपने सामर्थ्य को पहचाने, आप सपने देखें, उनको संकल्प में परिवर्तित करें और जी जान से उसे सिद्ध करके रहें। हमारे भारत ने भी तो आजादी के बाद अपनी यात्रा नए सिरे से शुरू की थी। जब देश की आजादी को 25 साल हुए, तब तक हमें भी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए बहुत कुछ कर लेना चाहिए था। तब से लेकर अब तक बहुत देर हो चुकी है। देश बहुत समय गंवा चुका है, बीच में 2 पीढ़ियां चली गई, इसलिए हमें 2 पल भी नहीं गंवाना है। साथियों, मेरी बातों में आपको अधीरता नजर आ रही है, और बहुत स्वाभाविक है कि आपको अधीरता लगती भी होगी, लेकिन मैं चाहता हूं, और जब आज कानपुर की धरती पर आपके बीच में आया हूं, तो मेरा मन करता है आप भी इसी तरह आत्मनिर्भर भारत के लिए अधीर बने। आत्मनिर्भर भारत पूर्ण आजादी का मूल स्वरूप ही है, जहां हम किसी पर भी निर्भर नहीं रहेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एवरी नेशन हैज ए मैसेज टू डिलीवर, a mission to fulfill, our destiny to reach. यदि हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो हमारा देश अपने लक्ष्य कैसे पूरे करेगा, अपनी डेस्टिनी तक कैसे पहुंचेगा। साथियों, आप ये कर सकते हैं, मेरा आप पर भरोसा है। और मैं जब आज इतनी बातें कह रहा हूं, इतनी चीजें कर रहा हूं, तो मुझे उनमें आपका चेहरा नजर आता है। आज देश में जो एक के बाद एक बदलाव हो रहे हैं, उनके पीछे मुझे आप ही का चेहरा नजर आता है। आज जो लक्ष्य देश तय कर रहा है, उसकी प्राप्ति की शक्ति भी देश को आपसे ही मिलेगी। आप ही हैं जो ये करेंगे, और आपको ही करना है। ये अनंत संभावनाएं आपके लिए ही हैं, और आपको ही इन्हें साकार करना है। देश जब अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, उस सफलता में आपके पसीने की महक होगी, आपके परिश्रम की पहचान होगी। और आप ये भली भांति जानते हैं कि बीते वर्षों में किस तरह
आत्मनिर्भर भारत की नींव तैयार करने के लिए, आपका काम आसान करने के लिए देश ने किस तरह काम किया है। पिछले 7 सालों में देश में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे प्रोग्राम शुरू हुए, अटल इनोवेशन मिशन और पीएम रिसर्च स्कॉलरशिप के जरिए देश युवाओं के लिए नए रास्ते बना रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ फ्यूचरिस्टिक टेम्परामेंट की नई पीढ़ी को तैयार करने की शुरुआत हो रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारा गया, पॉलिसी ब्लॉकेज दूर किए गए। इन प्रयासों के परिणाम इतने कम समय में आज हमारे सामने हैं। आजादी के इस 75वें साल में हमारे पास 75 से अधिक यूनिकॉर्न्स है, 50,000 से अधिक स्टार्टअप है। इनमें से 10,000 स्टार्टअप तो केवल पिछले 6 महीनों में आए हैं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनकर उभरा है। कितने स्टार्टअप्स तो हमारी आईआईटीज के युवाओं ने ही शुरू किए हैं। अभी हाल ही के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया के कई विकसित देशों को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न कंट्री बन गया है। साथियों, आजकल ग्लोबलाइजेशन की बात होती है, उसके पक्ष विपक्ष पर भी बात होती है, लेकिन एक बात पर कोई विवाद नहीं है। कौन भारतीय नहीं चाहेगा कि भारत की कंपनियां ग्लोबल बने, भारत के प्रोडक्ट ग्लोबल बने। जो आईआईटीज को जानता है, यहां के टैलेंट को जानता है, यहां के प्रोफेसर्स की मेहनत को जानता है, वही विश्वास करता है ये आईआईटी के नौजवान जरूर करेंगे। और मैं आज आपको ऐसे प्रोफेशनल्स को ये भी भरोसा देना चाहता हूं कि सरकार हर तरीके से आपके साथ है। साथियों, एक और जरूरी बात हम सबको याद रखनी है। आज से शुरू हुई यात्रा में आपको सहूलियत के लिए शॉर्टकट भी बहुत लोग बताएंगे, लेकिन मेरी सलाह होगी कि आप कंफर्ट और चैलेंज में अगर चुनना है तो मैं आग्रह करूंगा, कंफर्ट मत चुनना, चैलेंज जरूर चुनना। क्योंकि आप चाहें या न चाहें, जीवन में चुनौतियां आनी ही है। जो लोग उनसे भागते हैं वो उनका शिकार बन जाते हैं। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर चैलेंजेस, यू आर द हंटर एंड द चैलेंज इज द हंटेड। इसलिए आपको एक ऐसा इंसान बनना है जो प्रॉब्लम्स को तलाशता है और अपने मुताबिक, अपनी चॉइस से उनको ये सॉल्यूशंस निकालता है। फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट्स आईआईटी के फाइनेस्ट टेक माइंड्स हैं। यू ऑल ईट, ड्रिंक, ब्रीथ टेक्नोलॉजी। आप लगातार इनोवेशन में ही लगे रहते हैं। फिर भी इन सब के बीच मेरा आपसे एक आग्रह भी है। टेक्नोलॉजी की अपनी ताकत होती है, उसमें कोई बुराई नहीं, और ये आपका पैशन भी है। लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहते हुए आप ह्यूमन एलिमेंट्स ऑफ लाइफ को कभी मत भूलिएगा। आप अपने स्वयं के रोबोट वर्जन कभी नहीं बनिएगा। आप अपनी मानवीय संवेदनाओं, अपनी कल्पनाओं, अपनी क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी को हमेशा जिंदा रखिए।
अपने जीवन में उन चीजों को भी महत्व दीजिएगा जो जरूरी नहीं कि हमें टेक्नोलॉजी की मदद से ही मिलती हो। आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर जरूर काम करिएगा, लेकिन इमोशन ऑफ थिंग्स को भूल मत जाइएगा। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जरूर सोचिएगा, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी याद रखिएगा। आप कोडिंग करते रहिएगा, लेकिन लोगों के साथ अपना कनेक्ट भी बनाए रखिएगा। अलग अलग लोगों से, अलग अलग कल्चर के लोगों से आपका जुड़ाव आपके व्यक्तित्व की ताकत ही बढ़ाएगा। ये नहीं होना चाहिए कि जब इमोशन दिखाने की बात आए तो आपका मस्तिष्क करे HTTP 404 पेज नॉट फाउंड। जब बात शेयरिंग की हो, शेयरिंग ऑफ जॉय और काइंडनेस की हो, तो कभी कोई पासवर्ड नहीं रखिएगा। खुले दिल से लाइफ को एंजॉय करिएगा। वैसे में जो अभी शेयरिंग ऑफ जॉय की बात की है, तो मुझे पता है कि ये शब्द आपको बहुत कुछ याद भी दिला रहा है। सागर ढाबा, और केरला कैफे की गपशप, यहां के कैंपस रेस्टोरेंट्स का स्वाद, CCD की कॉफी, OAT पर काठी रोल्स, और MT पर चाय और जलेबी, टैग कृति और अंतरंगिनी भी आपको बहुत याद आने वाले हैं। जीवन इसी का नाम है। जगह बदलती है, लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, लेकिन जीवन चलता रहता है। इसी को कहते हैं चरैवेति, चरैवेति, चरैवेति। मैं अभी देख रहा हूं कि कई सारे स्टूडेंट्स दूसरे लेक्चर हॉल में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से वो वहीं से मुझे सुन रहे हैं। अगर आप लोगों की अनुमति होगी और आपके इस प्रोटोकॉल में कोई तकलीफ ना हो, तो मैं जरूर वहां जाना चाहूंगा, उनसे मिलना चाहूंगा, उनसे रूबरू मिलूंगा। आप अपने कैरियर में सफल हो, आपकी सफलता देश की सफलता बने, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। I hereby declare the 54th convocation closed. Thank you. Please rise.
तो आईआईटी कानपुर से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। 54वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा वो हम आपको